Good morning. Welcome to Indian Polity Lectures. This is my channel, Indian Polity with Ramzan sir. This is a channel on which I am uploading the lectures on Indian polity. I have uploaded different lectures. Today we are going to discuss a new lecture on fundamental rights. Dear students, the concept of fundamental rights. Today we have to explain how many fundamental rights are there, in which part of the constitution there are fundamental rights, what was the number of fundamental rights at present, what is the number of fundamental rights, etc., etc. These are different things which we need to explain here. First, these fundamental rights, they have been derived in India from the American Bill of Rights. American Bill of Rights. In American Constitution, there is a feature. अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर है called as Bill of Rights, and from that Bill of Rights, the constitutional framers of India, Indian Constituent Assembly, they I would like to say they copied this Bill of Rights and created fundamental rights in Indian Constitution. These fundamental rights were inserted in part 3rd of the Constitution. Part 3rd of the Constitution. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब 1949 में बनाया गया था, in 1949 it was framed, it was adopted in 1949. The date on which Constitution of India was adopted is 26 November 1949. On this date, Indian Constitution was adopted, and after 2 months, that is on 26 January 1950, this constitution came into force. This constitution was implemented. At that time, there were 22 parts of this constitution. 22 parts of this constitution. However, as we know that the Parliament of India has power to amend the constitution. लोकसभा, राज्यसभा, जिसे हम पार्लियामेंट या सेंट्रल लेजिस्लेचर कहते हैं, उनके पास एक पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकते हैं. तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं और अमेंडमेंट्स में वो एडिशन और अल्टरेशन कॉन्स्टिट्यूशन की कर सकते हैं. तो सो फार आज तक 3 parts have been added, 3 parts, and the present number of parts in Indian Constitution is 25. There are at present 25 parts of Indian Constitution. So here I am going to discuss fundamental rights, and these fundamental rights are in part 3rd of the Constitution. Part 3rd of the Constitution. तो पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो 22 पार्ट्स है उनकी थोड़ी सी हम एग्जांपल बनाएंगे. पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4. पहले आर्टिकल से चौथे आर्टिकल तक, आर्टिकल 1, 2, 3 and 4. This is called as part first of the constitution. And from article 5 to article 11 is called as part 2nd of the Indian Constitution. Part 2nd means article 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So the part 3rd, it starts from article 12 to article 35. This is part 3rd of the Constitution. And again part 4th
Part 4th is Article 36 to Article 51 एंड सो ऑन। इसके बाद पार्ट 5th है, 6th 7th 8th है, तो 22वें पार्ट तक हम फिर आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पार्ट 3rd को डिस्कस, पार्ट 3rd को फोकस करना है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम पार्ट 3rd में देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे पार्ट में जो राइट्स लिखे हुए हैं उन्हीं राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो दीज फंडामेंटल राइट्स आर present in the part 3rd of constitution, and part 3rd starts from article 12 to article 35। तो इस पार्ट में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स when constitution was framed। the constituent assembly desired to keep 7 fundamental rights in part 3rd of the constitution, but later on, after a gap of years, an amendment called as 44th Amendment, it happened in 1978 during the non-Congress government, during government of Morarji Desai. At that time, Morarji Desai was from Janata Party. Morarji Desai, he was the first non-Congress Prime Minister of India. First Prime Minister of India was P.T. Nehru. He was from Congress Party. Second Prime Minister of India was Lal Bahadur Shastri. He was also from Congress Party. Third Prime Minister was Indira Gandhi. She was also from Congress Party. But the fourth Prime Minister, he was Morarji Desai, and Morarji Desai was the first non-Congress Prime Minister of India. ही बिलोंग टू जनता पार्टी। तो जनता पार्टी की इस गवर्नमेंट ने 1978 में एक अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट कहते हैं। तो अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट, आउट ऑफ 7 फंडामेंटल राइट्स, 1 फंडामेंटल राइट वाज डिलीटेड। 1 फंडामेंटल राइट वाज डिलीटेड, एंड द फंडामेंटल राइट दैट वाज डिलीटेड इज कॉल्ड एज राइट टू प्रॉपर्टी। तो उस फंडामेंटल राइट का नाम राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसे डिलीट कर दिया गया। एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट। हाँ, तो इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से निकाला गया था, रिमूव कर दिया गया था, और इट वाज इंसर्टेड इन द लिस्ट ऑफ लीगल राइट्स। एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट एंड नॉट ए फंडामेंटल राइट, बट टिल 1978 तक जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था हमारे देश में। लेकिन एट प्रेजेंट इट इज़ नो मोर ए फंडामेंटल राइट, इट इज़ ए लीगल राइट, बिकॉज इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर अमेंडमेंट 44th in the year 1978, and that amendment was done during the times of Morarji Desai, non-Congress Prime Minister, and it was the government of Janata Party. Now, these fundamental rights are justiciable rights. These are justiciable rights. What do you understand by justiciable rights? Fundamental rights are justiciable. Justiciable means that if anybody challenges them, if anybody violates them, if anybody try to snatch these fundamental rights from us, अगर कोई इन फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ करेगा, अगर कोई इन फंडामेंटल राइट्स को तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा, अगर कोई इन फंडामेंटल राइट्स को छेड़ने की कोशिश करेगा, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 के मुताबिक, दफा 32 के मुताबिक, वी कैन गो इवन डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, रुजू कर सकते हैं जस्टिस ढूंढने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी इंसान के हम तोड़ नहीं सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स किसी के भी हम वायलेट नहीं कर सकते। अगर कोई किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स वायलेट करेगा, तो ऐसे आदमी के खिलाफ हम दफ़ा 32 के तहत इवन सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं।
जाना तो सुप्रीम कोर्ट में एक इंडिविजुअल को नहीं चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट पड़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ा हुआ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का मामला हो तो उस वक्त एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने की भी इजाज़त होती है। दिस इज रिटन इन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, हियर यू मस्ट रिमेंबर दैट आर्टिकल 32 इज कॉल्ड एज सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Article 32 is soul of heart and constitution. If we remove Article 32 from the constitution, the whole constitution will become meaningless. Entire constitution बेमाने और बेमतलब बन जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 32 से ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब बन जाता है। आर्टिकल 32 ही हमारे राइट्स की रक्षा करता है। आर्टिकल 32 हमें इजाज़त देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक अपने राइट्स को ढूंढने के लिए जा सकते हैं। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि पहले हमारे लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स रखे हुए थे, लेकिन फिर 1978 के अमेंडमेंट 44 में एक को डिलीट कर दिया गया, तो प्रेजेंटली देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो पहले हम इनकी एक लिस्ट बनाएंगे, इनके नाम एक एक करके हम पहले यहाँ पे देखेंगे क्या क्या फंडामेंटल राइट है। पहले फंडामेंटल राइट का नाम है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी is the name of first fundamental right in India, and this fundamental right is written in Article 14 to Article 18। पहले फंडामेंटल राइट का नाम राइट टू इक्वालिटी है, और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में लिखा हुआ है। इसमें डिटेल लिखी हुई है। आर्टिकल 14 में भी 15, 16 और 17 और 18, लेकिन इन सबों को हम इस वक्त डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में थोड़ा सा जानना, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ आर्टिकल्स की जिक्र आ जाती है, कुछ आर्टिकल्स के बारे में पूछा जाता है, और अक्सर बेशतर पूछा जाता है कि आर्टिकल 17 में क्या बात लिखी है। What is written in Article 17 of the Indian Constitution? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस आर्टिकल 17 में क्या बात लिखी है? आर्टिकल 17 में यही लिखा है कि पुराने ज़माने में जो हमारा भारत था, इंडिया था, इट वाज डिवाइडेड, द इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वारनास। 4 वारनास। 4 वारनास किसे कहते थे? 4 वारनास जस्ट मीन्स 4 क्लासेस ऑफ द पीपल। 4 क्लासेस ऑफ द पीपल। Society was divided into 4 different classes of people. The first class of people was called as Brahmanas. Brahmanas. Second was called as Kshatriyas. Kshatriyas. Third was called as Vaishyas. And fourth was called as Shudras. तो सबसे ज़्यादा इज्जत वाली ज़ात ब्राह्मणों को मानते थे, दूसरे नंबर पे क्षत्रियास को, तीसरे नंबर पे वैश्यास को, और लास्ट नंबर पे शूद्रा सोसाइटी में। इनको थोड़ा मतलब वो मीक पीपल माने जाते थे, इनको थोड़ी बेइज्जती की जाती थी, इनको अछूत भी कहते थे। और जो बाकी 3 क्लास है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या, ये इन शूद्रास के साथ टच नहीं करते थे। एंड दिस वाज कॉल्ड एज सिस्टम या प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी क्या था? अनटचेबिलिटी यही था कि बाकी क्लासेस ऑफ पीपल जो थे वो शूद्रास के साथ हैंडशेक नहीं करते थे, वो शूद्रा के नल से पानी नहीं पीते थे, वो शूद्रा के छुए हुए चीज़ को छूना नहीं चाहते थे, तो इसलिए इनको शूद्रास या अनटचेबल्स कहते थे। तो इनके साथ ये बाकी 3 क्लासेस जो थे टच नहीं करते थे। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, और अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 के तहत बैन किया गया। सो इट इज रिटन इन आर्टिकल 17 दैट अनटचेबिलिटी इज बैन्ड बाय लॉ। अनटचेबिलिटी पे बैन लगाई हुई, इट इज बैन्ड बाय लॉ। बैन्ड बाय लॉ। द पर्सन हु प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी कैन बी पनिश्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो इंसान, वो आदमी जो अनटचेबिलिटी पे बैन करेगा, तो उस इंसान को हम कोर्ट में सजा दिला सकते हैं। तो ये आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17। बाकी राइट टू इक्वालिटी जो है, इसका सिंपली मतलब है कि ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। कानून डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18 में कहा गया है कि देयर इज बैन ऑन दीज फॉरेन टाइटल्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय इंडियन पीपल। तो
राइट टू इक्वलिटी के बाद दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, right to freedom is the second fundamental right in India. This is the second fundamental right of people of India, and this fundamental right is written from Article 19 to Article 22. Article 19 में Article 19 से 22 तक इसकी डिटेल लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि तमाम लोग आज़ाद है। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 19 में लिखा है कि ऑल पीपल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, right to freedom of expression, right to move from one place to another place, right to reside यानी बसना रहना in any part of the country, अब देश की किसी भी हिस्से में रिजाइड कर सकते हैं। राइट टू असेंबल प्रोवाइडेड वी आर नॉट विदाउट आर्म्स, हम असेंबल हो सकते हैं, एक जगह जमा हो सकते हैं, अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए, आर्म्स और एमुनिशन वेपन्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी जो है राइट टू फ्रीडम है, इसमें एक आर्टिकल है जिसके बारे में अक्सर बेशतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिंपली पूछा जाता है कि आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में सिंपली आप याद रखिए कि आर्टिकल 21 में लिखा है कि ऑल पीपल हैव राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, एक तो सबको जिंदा रहने का हक है और सबको अपनी जाती आज़ादी एंजॉय करने का हक है। लिबर, राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक, और राइट टू लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। यानी पर्सनल लिबर्टी मीन्स हम किस तरह का ड्रेस पहनेंगे, हमारे हेयर स्टाइल कैसे होंगे, हम किस तरह चलेंगे फिरेंगे, अपनी ज़िंदगी को किस तरह बसर करेंगे। ऑल दिस कम्स इन द परव्यू ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो ये पर्सनल लिबर्टी हमें आर्टिकल 21 में ग्रांट की गई थी। इसके बाद हमारा जो थर्ड फंडामेंटल राइट आता है, तीसरा फंडामेंटल राइट, थर्ड फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइट, उन दोनों राइटों को राइट टू इक्वलिटी था, राइट टू फ्रीडम था, लेकिन यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? अगेंस्ट, खिलाफ, एक्सप्लॉइटेशन जुल्म के खिलाफ। अगर हम पे जुल्म किया जाए तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हक है। This is right against exploitation and is written in Article 23 and 24. तो आर्टिकल 23 और 24 में लिखा है कि आर्टिकल 24 कहता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स इज बैंड। हम किसी इंसान को ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। स्लेव ट्रेड इज बैंड, नौकरों का तिजारत जो करते थे पुराने ज़माने में वो बैन किया हुआ है। अब किसी नौकर को बेचा नहीं जाएगा, अब किसी नौकर को खरीदा नहीं जाएगा। इंसान है, कोई मूली गाजर नहीं है जिसको हम खरीदेंगे या बेचेंगे। इंसान को ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। बेचने वाले को भी सज़ा हो सकती है और खरीदने वाले को भी सज़ा हो सकती है। और आर्टिकल 24 में क्या लिखा है? आर्टिकल 24 में लिखा है कि जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स होते हैं, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को हम किसी हैज़ार्डस लेबर में, किसी ऐसी मजदूरी में काम नहीं करवा सकते हैं जहां पे उनके सेहत को खतरा हो सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि अपने माँ बाप जो होंगे, पेरेंट्स जो होंगे, वो अपने 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को किसी माइन में, फैक्ट्री में, बड़े कारखाने में काम पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर में आता है। वहाँ पे उस बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है, काम खतरनाक है। तो आर्टिकल 24 ने मना किया हुआ है हर किसी को 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे को हम किसी भी खतरनाक काम में एंगेज नहीं कर सकते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बाद चौथा फंडामेंटल राइट जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें और एक आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ादी है, हक है। क्या हक है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब की आज़ादी का हक है। मजहब के तौर पर हम आज़ाद हैं, हमें पकड़ा नहीं जाएगा कि फलां मजहब आप कबूल कीजिए। वो हमें गवर्नमेंट ने, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आज़ादी दी हुई है
और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 25 से 25, 24, 27 और 28 4 आर्टिकल्स आते हैं। तो चारों आर्टिकलों में अलग अलग डिटेल लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे हम फिर से उसी तरह जहाँ मैंने आपको बताया था अभी कि आर्टिकल 17 अक्सर बेशतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, आर्टिकल 21 एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन इसी तरह आर्टिकल 27 जो है अक्सर बेशतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आर्टिकल 27 में क्या डिटेल लिखी है। पहले इस तमाम फंडामेंटल राइट को यानी राइट टू फ्रीडम के बारे में हम ये बता सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो यही बताता है कि हर कोई इंसान आज़ाद है, जो किसी भी मज़हब के साथ जाना चाहे जा सकता है, किसी नए मज़हब को कबूल करे कर सकता है, अपने मज़हब को बदलना चाहे बदल सकता है। तो इसी तरह लिखा है आर्टिकल 27 में कि गवर्नमेंट कैन नॉट collect tax for the promotion of a particular religion। किसी खास मजहब को बढ़ावा देने के लिए, किसी खास मजहब की तरक्की के लिए, किसी खास मजहब को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार लोगों से फंड्स वसूल नहीं कर सकती, लोगों से टैक्स नहीं मांग सकती, क्योंकि इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट। हिंदुस्तान एक सेक्युलर स्टेट है। इस सेक्युलर स्टेट में सरकार किसी मजहब की बुनियाद पे राय नहीं कर सकती है, सरकार मजहब की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। तो डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान में करना मना है, क्योंकि एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर देश उस देश को कहते हैं जहाँ पे हर कोई मजहब एक जैसा माना जाएगा, जहाँ पे मजहब की बुनियाद पे फ़र्क नहीं किया जाएगा, जहाँ पे मजहब की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, all the religions are respected equally. There is no discrimination on the basis of religion in our country, because our country is a secular country. It is a secular state. तो फिर पांचवा फंडामेंटल राइट जो है जिसे हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कहते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दिस इज आवर फिफ्थ फंडामेंटल राइट। ये पांचवा फंडामेंटल राइट है। This is fifth fundamental right of Indians and it is written in Article 29 and 30। आर्टिकल 29 और 30 में लिखा हुआ है कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की हुई है। माइनॉरिटीज़ जो है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, किसी को भी हम गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल में एडमिशन का इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बनाने का भरपूर अधिकार है, वो हक है उनको। माइनॉरिटीज़ अपनी मर्जी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट while granting funds to the majority educational institutions। गवर्नमेंट जब मेजॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंड्स ग्रांट करेगी तो फिर उसी तरीके के उसी रेशो में से उसी रेशो के हिसाब से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी फंडिंग करनी है, फंड्स प्रोवाइड करनी है। तो लास्ट फंडामेंटल राइट इज सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, जो एट प्रेजेंट सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है, तो वो है राइट टू constitutional remedies। Right to constitutional remedies, this is the sixth fundamental right in India। यह हिंदुस्तान का आज छठा फंडामेंटल राइट है, यानी आखिरी फंडामेंटल राइट है। एंड दिस फंडामेंटल राइट इज रिटन इन आर्टिकल 32 to 35। तो ये आखिरी फंडामेंटल राइट है हमारे देश में। पहले तो ये आखिरी नहीं था, पहले तो ये सातवां फंडामेंटल राइट था, इससे पहले का जो छठा था। लेकिन आज ये सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है, इसके बाद कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये लास्ट फंडामेंटल राइट है इंडिया का। तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 32, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आर्टिकल 32 के मुताबिक हर किसी को हक है, ये राइट दिया हुआ है कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ किया जाए, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़ा जाए, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जस्टिस ढूंढने के लिए जा सकते हैं। तो dear guys, it was all about fundamental rights, but here I would like to say what the fundamental rights mean. Fundamental rights mean some basic rights. These are some basic rights of the people. Fundamental rights are basic rights of people.
These are the primary rights of people. ये बुनियादी हुकूक होते हैं. इन बुनियादी हुकूकों के बिना हमारी जो ज़िंदगी है वो माने लेस होती है. हमारी ज़िंदगी जो है वो मीनिंगफुल नहीं होती है. इसलिए इनको फंडामेंटल कहते हैं. And these are fundamental in a sense that they are protected. They are protected and guaranteed by Constitution. They are protected and guaranteed by Constitution. Constitution इनकी प्रोटेक्शन भी देता है और इनकी गारंटी भी देता है. इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूरी याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है. There are some limitations on the fundamental rights because in the interest of our sovereignty, in the interest of our unity, the parliament has the right to curtail some fundamental rights. Parliament has the right to make an amendment in the fundamental rights. जब parliament को इख्तियार है वो फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर स्ट्रॉन्ग राइट्स ऑफ पीपल. फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स ऑफ पीपल. दे आर द प्राइमरी राइट्स ऑफ आवर लाइफ. So this is all about fundamental rights, and we will inshallah rahman meet in the next lecture. Thank you.